Hello students, I am Mr. Anil Disle, working as Assistant Professor in Vidya Pratishthan's Kamal Nayan Bajaj Institute of Engineering and Technology, Baramati. In this video, I am going to show you how to fill the university examination form for second semester, that is even semester. So for that purpose, you have to log into the university website. So the procedure is very simple. So just open the Google, and in Google just type Unipune, 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 and just press enter. So you have to take this first website, that is www.unipune.ac.in. okay, so so this is our university official website, unipune.ac.in. and you have to select आपको ही select करना है students corner. So on that students corner you have to select examination information. So I repeat, so just click on students corner. So students corner, so here is students corner, and on that students corner you have to select the examination information. So just click on it. After that just scroll down, and उसके बाद आपको A select करना है, this one examination. Students section में आ जाएगा examination forms online. So you have to select examination forms online. So इसको select कर दो, examination forms online. So after that there will be different links for that, link 1 to link 8. You can select any one, कोई भी आप link इसमें से select कर सकते हैं. Suppose I will select this one, link number 7. So here in that you have to go for online examination form. Just click here, login, online examination form. So just press login. After that here you have to go, आपको यहाँ जाना है, स्टूडेंट्स में जाना है. सो क्रिएट अकाउंट के ऊपर नहीं जाना है, लॉगिन, बिकॉज ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है फर्स्ट सेमिस्टर में. दिस पर्टिकुलरली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. सो इस स्टूडेंट्स में आपको क्रिएट अकाउंट पे नहीं जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है. जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करो. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद you have to log in here. So login by, you can log in it by your email ID, mobile number, Aadhaar number, passport number. So I will log in here by mobile number. So here you have to put your mobile number. So I'll put the mobile number. And here you have to put your password. ये जो पासवर्ड है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, जहाँ पर आपने एक क्रिएट किया था अकाउंट, उस वक्त का ये पासवर्ड है. अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको वापस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू हैव टू पुट द करेक्ट पासवर्ड एंड जस्ट पुट दिस नंबर. सो यू हैव टू पुट द कैप्चा हियर एंड जस्ट प्रेस लॉगिन. सो ये प्रेस करने के बाद हियर द एक्शन बटन इज देयर. सो हियर देयर आर 3 ऑप्शंस. अपडेट प्रोफाइल, अगर आपको कुछ प्रोफाइल में अपडेट करना है तो यहाँ से आप प्रोफाइल में भी अपडेट कर सकते हैं. सपोज यू हैव टू चेंज योर मोबाइल नंबर, मदर्स नेम वगैरह, लेकिन वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म. सो यू हैव टू सिलेक्ट द मिडल वन, एग्जामिनेशन फॉर्म. सो प्रेस ऑन एग्जामिनेशन फॉर्म. So after pressing the examination form, you have to press here online exam form, proceed. Remember, you have to press this proceed. So just press on proceed. And उसके बाद 2 ऑप्शंस आएंगे आपको यहाँ पर, फर्स्ट ईयर आर्ट साइंस कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, एंड दिस वन इज अदर देन फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग एंड ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. सो रिमेंबर यू हैव टू सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन. आई रिपीट, यू हैव टू सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन. यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है एंड जस्ट प्रेस ऑन क्रिएट न्यू एप्लीकेशन. सो दिस फॉर सेकंड सेमिस्टर, this application is for second semester, so you have to press create new application. So here the window will show you your details. आपके पूरे details यहाँ पर आ जाएंगे. So your name will be there, everything is there. Just cross check it once again, and if there are some corrections you can make it afterwards also, no problem. And here you have to press next. आपको यहाँ पर next press करना है. So just next press करो. प्रेस करने के बाद again there will be 3 options. यहाँ पर 3 options हैं. So these for production sandwich and all these things.
ऑल दिस थिंग्स. सो यू हैव टू सिलेक्ट द मिडल वन. सो आपको ये मिडल वाला सिलेक्ट करना है. सो अगेन आई रिपीट, पहले बार में हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया था. हियर आल्सो यू हैव टू सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन. यहाँ पर भी आपको सेकंड ऑप्शन ही चूज करना है. विच वन? फॉर अदर ब्रांच प्लीज सिलेक्ट दिस ऑप्शन. मिडल वाला सेकंड ऑप्शन चूज करना है. सो हियर आल्सो यू हैव टू सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन. यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करो. सेकंड ऑप्शन चूज करने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आपको कुछ भी नहीं करना है. सो एग्जामिनेशन, आई रिपीट, एग्जामिनेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन फॉर्म जनरेट हो जाता है. तो इसमें कुछ भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है. सो अगर आपके कुछ बैकलॉग्स हैं तो ये बैकलॉग्स थ्योरी में यहाँ दिखाई देते हैं. कहीं भी टिक मार्क नहीं करना है आपको. आई रिपीट, टिक मार्क कहीं भी नहीं करना है आपको. ये प्रैक्टिकल के जो सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रैक्टिकल के ऑटोमेटिक आ जाएंगे. वो आपको ऑटोमेटिक मार्क्स मिलने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर में. तो फिलहाल यहाँ पर प्रैक्टिकल में दिखाई देते हैं. इट डजेंट मीन दैट कि आपका बैकलॉग है. आई रिपीट, यहाँ प्रैक्टिकल में शो होता है. इट डजेंट मीन कि आपका बैकलॉग है. ये पर्पजली यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 1 में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे, उसके वजह से उन्होंने पर्पजली रखा है. बट आफ्टर सेकंड सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके ऑटोमेटिक क्लियर होने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. नाउ द इंपॉर्टेंट इज हियर थ्योरी. अगर यहाँ पर थ्योरी में कुछ दिखाई देता है, इट इंडिकेट्स दिस इज योर बैकलॉग. लेकिन यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने ग्रीवेंस डाला है, ग्रीवेंस में एग्जामिनेशन दिया है, री एग्जाम दिया है, री एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है तभी भी यहाँ पर आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. यहाँ शो होता है, इट डजंट मीन कि आपका बैकलॉग है. अगर एक्चुअली आपका बैकलॉग है फिर तो आ ही जाएगा. आपको पता है आपका बैकलॉग है. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, ये तो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये तो मैंने री एग्जाम दिया था और री एग्जाम में मेरा सब्जेक्ट क्लियर भी हुआ है, मैंने ग्रीवेंस डाला था, ग्रीवेंस सबमिट हुआ था, मेरा री एग्जाम भी हुआ, उसमें क्लियर भी हुआ है. डोंट वरी, ये बाद में जब सेमेस्टर 2 का जब रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त ये नहीं आएंगे. इसका एग्जाम आपको नहीं दोबारा देना है. अगर आपका री एग्जाम में क्लियर है तो ये आपका सब्जेक्ट क्लियर है. डोंट वरी अबाउट इट. सो यहाँ कहीं भी क्लिक नहीं करना है. ये हमारे सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं. सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में भी आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है. आपको ऑप्शन ही नहीं है. ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट टिक हैं. सारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट. ग्राफिक्स सारे डिविजन्स के लिए रहता है. इट इज ऑलरेडी देयर एंड यू कांट क्लिक हियर. इफ यू सी हियर, यू कांट क्लिक हियर. आप क्लिक नहीं कर सकते. मैथमेटिक्स सारे डिविजन्स के लिए है. देखो यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर सकते. लाइक दिस. ओके, ये पीबीएल सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, सारे डिविजन्स के लिए है. तो आप यहाँ क्लिक नहीं कर सकते. तो क्लिक कहाँ पर करना है? दिस आर द ऑप्शन सब्जेक्ट. मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीपीएससीएम, इसमें आपको सिलेक्ट करना है. सो पहला सब्जेक्ट. सो दिस स्टूडेंट्स इज फ्रॉम डिवीजन नंबर 1. ये 1 डिवीजन का है. तो 1 डिवीजन को पहले सेमेस्टर में फिजिक्स था, तो अभी क्या आएगा, उसको केमिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा. सो यू हैव टू सिलेक्ट द केमिस्ट्री हियर. यहाँ पर आपको, एंड दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिपीट, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर गलती से अगर आपने फिजिक्स चूज किया, सो देर आर वेरी लेस चांसेस दैट दिस सब्जेक्ट विल गेट करेक्टेड आफ्टरवर्ड्स. तो ये बाद में इसको चेंज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है. सो आई रिपीट, ये सब्जेक्ट बहुत ही केयरफुली आपको चूज करना है. तो सेमेस्टर 1 में आपका फिजिक्स था तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री चूज करना है. सेमेस्टर 1 में आपको कौन सा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल था, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स. ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं क्योंकि स्पेलिंग इज नियरली सेम. बेसिक इंजीनियरिंग, सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नियरली स्पेलिंग सेम है. तो यहाँ बिल्कुल ही ध्यान दें कि आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है. सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो पहले सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल था तो कंफर्म आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करना पड़ेगा. एंड दिस द थर्ड सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स और पीपीएस. तो पहले सेमेस्टर में आपको पीपीएस था, मीन्स प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग था, तो अभी आपको मैकेनिक्स चूज करना है. दिस आर द ग्रुप्स जो हमारे कॉलेज में सिलेक्ट किए हैं. केमिस्ट्री के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैकेनिक्स आ जाता है. ओके, सो दिस आर द सब्जेक्ट. बाकी ऊपर आई रिपीट, यहाँ कहीं भी टिक मार्क नहीं करना है. यहाँ पर भी कहीं भी टिक मार्क नहीं करना है. एंड डायरेक्टली यू हैव टू प्रेस हियर. डायरेक्टली यहाँ पर प्रेस कर दो, सबमिट. यहाँ पर सबमिट हो जाएगा आपका. सबमिट होने के बाद ये फॉर्म फी आएगा, एग्जामिनेशन फी आएगा, कैप फी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फी आएगा. एंड दीज आर द टोटल रुपीज़ दैट यू हैव टू पे. जनरली अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर ऑल क्लियर है तो 1000 रुपीज़ आ जाता है. एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो यहाँ पर फी बढ़ जाएगा. सपोज आप सेमेस्टर 1 में ऑल क्लियर है तो यहाँ पर आई रिपीट फीस कितना आता है, 1000 रुपीज़ फी आता है. 1000 रुपीज़ फी आता है. इसको ज़्यादा फी आई, इट इंडिकेट्स दैट सेमेस्टर 1 के इसके कुछ बैकलॉग्स हैं. बैकलॉग्स है तो ये फी ज़्यादा आ जाएगा. अदरवाइज 1000 रुपीज़ इज द फीस जो आपको पे करना है. सो यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड प्रिंट. सो जस्ट प्रेस द कन्फर्म एंड प्रिंट बटन हियर. यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रिंट प्रेस कर दो. सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो एक पीडीएफ जनरेट हो रहा है. सो ऑटोमेटिकली आपका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा. ये पीडीएफ ओपन करो. ओपन करने के बाद इसको डाउनलोड करो.
एंड डाउनलोड करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करके रखो। ना सेव करने के लिए इसको कैसे सेव करना है, तो इसको एक फॉर्मेट है, सो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू पुट योर रोल नंबर, सो आप पहले आपको रोल नंबर पुट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू पुट योर नेम, उसके बाद आपको आपका नेम पुट करना पड़ेगा। ओके, सो फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ, A111 करके सेव करता हूँ लाइक दिस। ओके, आफ्टरवर्ड्स आई विल चेंज दिस, उसके बाद मैं उसको चेंज करता हूँ। तो इसका नाम क्या है, ढाड़े विशाल धनंजय, सो आई विल कॉपी इट। ओके, एंड हिज रोल नंबर इज 1170। ओके, सो मैं ये कॉपी किया एंड ये जो यहाँ पर मैंने सेव किया था उसको मैं रीनेम करता हूँ। सो इसका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर है 1170 _, उसके बाद अंडरस्कोर करना है, अंडरस्कोर प्रेस करने के बाद टाइप करने के बाद यू हैव टू पुट योर नेम। आई रिपीट, तो उस फाइल को नेम देना है। नेम कैसा देना है, फर्स्ट यू हैव टू पुट योर रोल नंबर कंपल्सरीली, फर्स्ट यू हैव टू पुट योर 4 डिजिट रोल नंबर, अंडरस्कोर करना है, अंडरस्कोर टाइप करना है, उसके बाद अंडरस्कोर के बाद यू हैव टू पुट योर कंप्लीट नेम, आपको कंप्लीट नेम पुट करना है। तो ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया लाइक दिस। ओके, सो दिस आवर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होने के बाद जस्ट चेक इट, उसको वापस एक बार चेक करो, आपका PIN नंबर चेक करो, एलिजिबिलिटी नंबर वगैरह है यहाँ पर, आपका टोटल फीस पेड आ जाएगा यहाँ पर, दिस योर नेम, एंड वापस एक बार सब्जेक्ट चेक करो। तो ये सब्जेक्ट वापस एक बार चेक करो, सारे सब्जेक्ट यहाँ से ऊपर है, ये देखो ये सेमिस्टर है, तो ये सारे फर्स्ट सेमिस्टर के सब्जेक्ट हैं। सो डोंट वरी अबाउट फर्स्ट सेमिस्टर सब्जेक्ट, फर्स्ट सेमिस्टर सब्जेक्ट के बारे में छोड़ दो, वो ऑलरेडी आए हैं। तो सेकंड सेमिस्टर के सब्जेक्ट के बारे में आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म देखे उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो सेकंड सेमिस्टर के सब्जेक्ट में एक बार वापस देखो कि आपका मैकेनिक्स है क्या, आपका एनवायरमेंटल स्टडी कंपलसरी सब्जेक्ट है, ग्राफिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है सारो डिवीजन के लिए, या फिजिक्स की जगह पे केमिस्ट्री होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। ये फिजिकल एजुकेशन, ये ऑडिट कोर्स कंपलसरी है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी सारों के लिए कंपलसरी है, ये डेमोक्रेसी इलेक्शन एंड गवर्नेंस, ये भी सारों के लिए कंपलसरी। ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए चेक करना है ठीक तरह से कि मैकेनिक्स है ना, PPS तो नहीं है, मैकेनिक्स है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट यू हैव टू चेक सीरियसली। एंड यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट वो कौन से, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में छोड़ो, सेकंड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू हैव टू चूज। एंड यहाँ पर टर्म वर्क में 3 जगह पे आ जाता है। इफ यू सी द टर्म वर्क, ये टर्म वर्क 3 सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए है, ग्राफिक्स के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है एंड PBL के लिए है। यहाँ पर 3 टिक मार्क्स आते हैं। एंड ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल में मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल है आपको, देन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, PBL का प्रैक्टिकल है, एंड डेमोक्रेसी इलेक्शन एंड गवर्नेंस का इसका प्रैक्टिकल है। सो आई हैव सीन सम एग्जामिनेशन फॉर्म इन विच टर्म वर्क में बहुत सारे टिक मार्क आए थे। यहाँ पर ये जो 3 वाया है ना, इसके जगह पे 5-6 भी आए हैं। तो इस प्रकार का फॉर्म है तो यू हैव टू करेक्ट इट, वो आपको दोबारा करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो करेक्ट विच वन इज द करेक्ट, तो यहाँ पर 3 ही वाई चाहिए। एंड ये जो प्रैक्टिकल या इधर है प्रैक्टिकल, ये सेकंड सेमेस्टर 2 के हैं, तो प्रैक्टिकल में 1 2 3 4 5 सेकंड सेमेस्टर में ये 5 वाई आनी चाहिए यहाँ पर। इफ योर एग्जामिनेशन फॉर्म इज लाइक दिस देन इट्स ओके। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर तो मैंने सेव कर दिया। अभी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को आपको आपके मेंटर को भेजना है। एंड इफ यू सी योर डिटेल्स, अगर यहाँ पर आप डिटेल्स देखते हैं, अभी कन्फर्मेंट प्रिंट हो गया, तो अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको ये देखो एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर वापस जाते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में इफ यू सी, सॉरी एरर आ गया, इसमें गड़बड़ हो गया, तो आज थोड़ा सा सर्वर को प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में वापस मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ एक बार फिर, सो दैट एक्चुअली क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ यू लॉग इन देयर, अगर आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर, सो लॉगिन करने के बाद ये देखो यहाँ पर अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में आपका क्या आया है, तो ये आपका एप्लीकेशन ID आया है, ये आपका लॉगिन है लाइक दिस। ओके, ढाड़ी विशाल, ये आपका लॉगिन है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट आया है। अगर एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर रिमूव आता है, रिमूव करो एंड वापस एक बार आप भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो आपका ये एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट होगा, इसका मतलब ये है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो गया। एंड यहाँ से आप वापस जितनी बार चाहिए उतनी बार यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर प्रिंट प्रेस किया तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, ये डाउनलोड हो जाता है। सो आपको क्या करना है, ये डाउनलोड वाला जो PDF है उसको ठीक तरह से नाम देना है। नाम मैंने बोला है कैसा देना है। सो फर्स्ट यू हैव टू पुट योर रोल नंबर, अंडरस्कोर एंड योर कंप्लीट नेम। एंड ये जो फॉर्म है ये आपके मेंटर को भेजना है। तो आपके मेंटर पता है आपको कौन आपके मेंटर टीचर है, उनको भेजना है। उनको भेजने के बाद आगे वाला प्रोसेस बोलता हूँ, उसके बाद क्या है। तो फिलहाल तो इतना ही प्रोसीजर अभी तक रनिंग है।
जब आपको जब आप ये फॉर्म आपके मेंटर को भेजोगे तो मेंटर क्या करेंगे, वो ऑफिस में भेजेंगे। एंड ऑफिस वाले क्या करेंगे, ऑफिस वाले जो पर्सन्स हैं वो पर्सन्स क्या करेंगे, तो वो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। थ्रू ऑफिस लॉगिन वो इनवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है यूनिवर्सिटी को। एंड एक बार वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो गया तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, आपके लॉगिन में आ जाता है। उसके लिए भी आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा। एंड उस लॉगिन के ऊपर यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी ने पेमेंट का ऑप्शन फर्स्ट ईयर के लिए स्टॉप किया है फ्रॉम मॉर्निंग। मे बी एक या 2 दिन में हो जाएगा वो चालू। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला पार्ट है कौन सा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का, वो कंप्लीट करना है। एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करो, कंप्लीट करो, रीनेम करो उसको ठीक तरह से, रीनेम करो लाइक दिस, इसको रीनेम करो, रोल नंबर डाल के, नाम डाल के रीनेम करो। एंड यू हैव टू सेंड इट टू योर मेंटर, वो आपको मेंटर को भेजना है। मेंटर क्या करेंगे, ऑफिस में भेजेंगे, ऑफिस वाली यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे। यूनिवर्सिटी को जैसे आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है, आपका पेमेंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। एंड पेमेंट का ऑप्शन एक्टिवेट होने के बाद यू हैव टू पे द अमाउंट ऑनलाइन, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को पे नहीं करना इस बार, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट को। उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट कैश या बैंक में जाके आप भर नहीं सकते, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। बट उस प्रोसेस का वो जो प्रोसेस है ऑनलाइन पेमेंट की, आज यूनिवर्सिटी ने स्टॉप किया है, पता नहीं क्यों, लेकिन यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर का पेमेंट प्रोसेस आज स्टॉप किया है। मे बी कल या परसों वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन 15 तारीख लास्ट डेट है, तो बिफोर 15 तारीख से पहले एटलीस्ट आप वो जो एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट करो। एंड कल या परसों अगर पेमेंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, यूनिवर्सिटी से रेडी हो जाता है, वापस मैं एक बार आपको 1-2-4 मिनट का वीडियो बना के हाउ टू मेक द पेमेंट वो मैं आपको बोल दूंगा। ओके, सो कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।